Yes, the difference between verb phrases and verbal phrases. Verb phrases, as name suggests, before reading and giving example, I would like to tell you that verb phrase means group of verbal group. हमने VG पढ़ा था है ना, तो that's a group of verbs. Whatever main verb, along with main verb, there are some helping verbs. That group is called verbal phrase, right? But for that particular main verb, if something other words are used and which are used as an adjective or adverb, group of words, phrases, you know that two words or more than two words. So if there are after verb, there are some group of words which are used for that particular verb or main verb, and which are, because a definition of adjective is the word or the group of words which qualify the verb is called adverb, and the word which qualifies the noun is the name of person, place, animal, thing, feeling. So which qualifies the noun is called adjective, noun or pronoun, adjective. So group of word which is used for that particular noun will be adjective, and group of word which is used for particular verb is called adverb. So these here in this group of words, verbs are used, but these are used and these act as an adjective or adverb, are called verbal phrases, not verb phrase, verbal phrases. So I'm just reading, then it would be more clear to you. When verb phrases functions as anything other than verb, they are verbal phrases. What? When verb phrases functions as anything means they are solely used for verb, right? In other words, verbal phrases can act like adverbs और adjectives. अभी मैंने आपको बताया कि verbal phrases are verbal phrases act as adverb or adjective. The phrase would include verbal, right? Participle, gerund or infinitive. First, let me tell you what is participle. Participle is that is, for example, go, went, gone. So gone is participle, right? So जितने भी participle words है means अभी आप मोटे broadly you can understand third form of verb, or gerund means reading. Actually, what's a gerund? Gerund means when the main first form of main verb plus ing is used as an adjective or as a noun or as a what we can say that object are called gerund. I'm just giving you example, then we will move. Gerund का example, smoking is a bad habit. तो स्मोकिंग करना, ing मीन्स स्मोकिंग करना, बट ing जनरली ing वर्ड्स आर यूज बिफोर ing. I am teaching you, so you will be taken class, right? You will be taking class, so that's a will be. So that's a ing form generally used with helping verb. But if it is not used with helping verb, directly use, reading is a good habit. So that's a reading is noun actually. We are talking about the word which we are describe, that is called a noun. So here reading ing but not is ring, directly ing form is used as a noun or adjective or adverb. It's called gerund. Gerund जो ing form है, ऐसे वर्ड्स जो आईएनजी के साथ यूज़ होता है लेकिन उसमें इज एम आर वॉज वर्ब पहले नहीं होता, उसको कहते हैं एग्जाम्पल आई टोल्ड यू स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट. तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि स्मोकिंग करना. रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, राइट, तो एज इन सब्जेक्ट.
आई लाइक रीडिंग बाद में कह रहे हो, लाइक के बाद तो वही सेम इट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको जीरेंट कहते हैं। और उन्हीं का और इन्फिनेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि आपने कहा टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, हाउ एवर इट्स अ रॉन्ग। अभी एक वीडियो बनाया है, देखती हूँ, भेजती हूँ वो, तो टू रीड नहीं बोलते, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट ऐसे बोलते हैं, है ना। तो अभी मैं बताऊँगी कैसे करना है उसको। फिर एनी मॉडिफायर। अब मॉडिफायर्स क्या है ये बहुत अच्छे से समझ लो, ये वर्ड आपको बहुत, आपको इंटरेस्ट है इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। मॉडिफायर्स क्या है? देखो, मॉडिफायर्स जो है ना, वो एनी वर्ड विच मॉडिफाइज द एनी वर्ड विच मॉडिफाइज द सेंटेंस, राइट। कोई भी डिटर्मिनर या कुछ भी, मॉडिफायर्स में कुछ भी हो सकता है। मॉडिफायर्स आर द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट अफेक्ट और and often enhance the meaning of the sentence. Modifier generally mean sentence का meaning को improve कर देते हैं, are called modifiers, right? अब modifiers क्या क्या हैं? तो modifiers है adjective, adverb, demonstrative verbs और पजेसिव, डिटर्मिनर्स। ये सारे मॉडिफायर जो भी शब्द किसी सेंटेंस के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, विच आर कॉल्ड मॉडिफायर्स, राइट। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप मॉडिफायर समझ लीजिए कि जो मॉडिफाई करते हैं, जो सेंटेंस में कुछ परिवर्तन लाते हैं, उनको मॉडिफायर्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। आई हैव गिवन माई एग्ज़ाम येस्टरडे, तो ये येस्टरडे यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे वाले एग्जाम्पल हैं। अब पहले वर्ब फ्रेज को और वर्बल फ्रेज को अच्छे से पढ़ो, समझ लो। वर्ब फ्रेज क्या है? द मैन वॉज टेक्सिंग ऑन हिज फोन। तो मैन वॉज टेक्सिंग ऑन हिज फोन, तो वॉज लगाया ना, तो टेक्स्ट इज द मेन वर्ब एंड वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब। सो वॉज टेक्सटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब फ्रेज, है ना। अब मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ वर्बल फ्रेज का कोई एग्जाम्पल। हियर, एज द कैट वॉच्ड, है ना, एज द कैट वॉच्ड, बट सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, दिस अ फ्रेज। द टू पपीज फॉट ओवर द बोन, राइट। सो टू पपीज फॉट ओवर द बोन, उनकी लड़ाई हो रही थी, पर किसके देखने से? कैट वॉच्ड, राइट। तो वर्बल फ्रेज एज कैट वॉच फंक्शन एज एडवर्ब। ये याद रखिए, एडवर्ब। वाई? बिकॉज फाइटिंग जो है ना, फॉट इज द वर्ब एंड दैट कैट वॉचिंग, द वॉचिंग ऑफ कैट is used for fighting, for fought, and that is why this is this phrase is known as adverbial phrase। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए? ये पूरा as the cat watched, ये पूरा सेंटेंस जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? फाइटिंग के लिए। तब उनकी लड़ाई हुई, क्योंकि कैट अगर नहीं दिखती तो पपीज़ लड़ते नहीं, है ना। तो एज द कैट वॉच्ड द टू पपीज फॉट ओवर द बोन, है ना। तो उनकी लड़ाई होने लगी। तो ये याद रखिए कि इसको द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज फॉर वर्ब, फाइट है ना, या फॉट हो गया उसका सेकेंड फॉर्म, सो यूज दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो ये वर्बल फ्रेज है। इसमें है तो वॉच जो है वो वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है दैट इज़ नॉट यूज फॉर completely used for verb, that is speaking something like extra, and that is called adverb, right। अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो, the small dog can learn new things, right। verbal phrase can learn functions as the action। अब the small dog can learn क्या हो गया? helping verb can, और learn main verb, new things। what he's saying that verbal phrase can learn functions as the action। so can or learn, two verbs are there, and that is why this is called verb phrase, not verbal phrase। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। पर verbal phrase का ये एग्जाम्पल देखो, the dog, small dog, was reluctant to learn new things।
अब आप बताओ, आप सोचो 2 मिनट के लिए, टू लर्न न्यू थिंग्स. वाई दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर? बिकॉज the small dog does not take any interest for learning something, right? So the small dog was unwilling. Reluctant means unwilling. Was unwilling or reluctant to learn. क्यों रिलक्टेंट है? पूरा सेंटेंस रिलक्टेंट के बारे में बता रहा है. टू लर्न न्यू थिंग्स. तो इन दिस सेंटेंस वर्बल फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज बोथ आर देयर. हाउ? वर्बल फ्रेज टू लर्न न्यू थिंग्स. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा टू लर्न न्यू थिंग किसके लिए यूज़ हो रहा है? स्मॉल डॉग के लिए, क्योंकि वो रिलक्टेंट है. वॉज रिलक्टेंट इज द वर्बल फ्रेज. वॉज है हेल्पिंग वर्ब एंड रिलक्टेंट मेन वर्ब, एंड दिस इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज. और वर्बल फ्रेज यहाँ पर क्या आ गया? पूरा टू लर्न. लर्न भी हेल्पिंग, लर्न भी मेन वर्ब है, पर टू लर्न न्यू थिंग. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, इतने पूरे 4-5 वर्ड्स आर यूज फॉर रिलक्टेंस. तो दैट इज वाई इट इज act as adverb, right? तो ये है. Finally, another example. Finally we can buy a new house. तो can buy ये क्या हो गया? verb phrase है ना. And that is can functions as an action. इसमें आगे वो अ न्यू हाउस जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई वर्ब यूज़ नहीं हो रहा अ न्यू हाउस में, एंड दैट इज़ वाई इट्स नॉट वर्बल फ्रेज. हाँ, वो अगर एक और कुछ इसमें सेंटेंस होता, इसमें वर्ब होता, और वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी के लिए काम करता, तो हम उसको वर्बल फ्रेज कहते. देखो आगे और देखो. फाइनली वी कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यू हाउस. इसमें कैन अफोर्ड जो है वो क्या है? ऑफ कोर्स वर्बल फ्रेज है. सॉरी, टू बाय अ न्यू हाउस. तो इसमें टू बाय अ न्यू हाउस ये वर्बल फ्रेज है और एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज एन एडवर्ब. लेकिन कैन अफोर्ड जो है ये वर्ब फ्रेज है. तो इसमें कैन अफोर्ड इज वर्ब फ्रेज एंड टू बाय अ न्यू हाउस दैट इज कॉल्ड adverbial phrase or verbal phrase, right? Then she was walking verb phrase है. On the ice, right? So she was walking. अब on the ice इसमें कुछ भी नहीं, मतलब अभी for a while it's nothing. Why? Because on the ice there is no verb is used, that's why it's not phrasal verb, right? Then next, walking on the ice है ना. अब वही वॉकिंग के पहले इज एम आर वॉज कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? वर्बल फ्रेज हो गया, क्योंकि वॉक करना ये एक नाउन फ्रेज है एक्चुअली. वॉकिंग ऑन द आइस फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव है ना. तो ये एक एडजेक्टिव की, तब बिकॉज इट क्वालिफाइज, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. वॉकिंग ऑन द आइस तो ऑफकोर्स नाउन है, पर उसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? वॉकिंग. अब आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन आप तो ब्रॉडली यू जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्बल फ्रेज और वर्ब फ्रेज. तो वर्ब फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ब्स, और उसमें एक मेन वर्ब होगा, उसके पहले हैज़ बीन लर्नड, इस तरह के कोई सेंटेंसेस होते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्बल फ्रेज. उसको बोलते हैं वर्बल फ्रेज, जिसमें बहुत सारी वो हेल्पिंग वर्ब होंगे और फिर मेन वर्ब होगा. लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर विल शैल कुछ भी नहीं लग रहा और डायरेक्ट वॉकिंग ईटिंग इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इसको वर्बल फ्रेज कहते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह मेनली काम करते हैं, उनको भी दैट इज़ कॉल्ड वर्बल फ्रेज. ये है. ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको.